بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے لینگویج کے بارے میں کہ واٹ از لینگویج، زبان کیا ہوتی ہے، نیچر اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس، لینگویج کی نیچر کیا ہے اور اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ آپ سب کو پہلے سے کچھ آئیڈیا ہوگا کہ لینگویج کیا ہوتی ہے۔ ا موڈ آف کمیونیکیشن، لینگویج از اے موڈ آف کمیونیکیشن، رابطے کا ذریعہ ہے جسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ا پیٹرن وے آف کمیونیکیشن، ایک منظم طریقہ ہے کمیونیکیشن کا، لیکن اس کے بارے میں لنگوسٹ کیا کہتے ہیں اسے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے آکسفورڈ ڈکشنری کی۔ آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے کہ دا میتھڈ آف ہیومن کمیونیکیشن ادھر ریٹن آر اسپوکن کنسسٹنگ آف دا یوز آف ورڈز ان اسٹرکچرڈ اینڈ کنونشنل وے، یعنی کہ دا میتھڈ آف ہیومن کمیونیکیشن، انسانوں کے جو رابطے کا طریقہ ہے، ادھر ریٹن چاہے وہ لکھائی کی صورت میں ہو، آر اسپوکن یا پھر بولنے کی صورت میں، کنسسٹنگ آف دا یوز آف ورڈز، اور الفاظ کے استعمال پہ یہ منحصر ہو، ان اسٹرکچرڈ وے، اسٹرکچر کے حساب سے، اینڈ کنونشنل وے، اور روایتی طریقہ کار کے مطابق ہو بے شک۔ تو آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق انسانوں کا جو رابطے کا طریقہ کار ہے، چاہے وہ لکھائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بولنے کی صورت میں ہو، اور اس میں الفاظ کا استعمال ہو رہا ہو، چاہے وہ روایتی طریقہ کار کے مطابق ہو، چاہے وہ اس کے سٹرکچر کے مطابق ہو، رول اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگلی ہو، اسے ہم لینگویج بولتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس نوم چومسکی کی ڈیفینیشن ہے۔ نوم چومسکی جو ہیں یہ بہت بڑے لینگوسٹ ہیں امریکن۔ یہ کہتے ہیں کہ لینگویج از دا ریزلٹ آف انفولڈنگ آف جینیٹیکلی انفولڈنگ پروگرام، کہ جینیٹیکلی ہمارے اندر جو بولنے کی صلاحیت ہے اسے ہم لینگویج بولتے ہیں۔ یعنی کہ لینگویج جو ہے یہ ہم اس جینیٹیکلی انفولڈنگ پروگرام کے زیر اثر ہوتے ہیں، اس جبلت کے زیر اثر جو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں انسٹنکٹیولی، انہیریٹنٹلی اپنے ماں باپ سے، جو بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور جو سیپر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لینگویج از پیورلی ہیومن اینڈ نان انسٹنکٹیو۔ پیورلی ہیومن، نمبر ایک کہ لینگویج جو ہے، زبان جو ہے، اس کا تعلق صرف انسانوں سے ہے، یہ اسپیشی اسپیسیفک ہے، صرف انسان بولتے ہیں، اور کوئی جو ہیں وہ مخلوق وہ آپس میں رابطے کے ذریعے زبان استعمال نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، کوئی بھی جو ان کی ساؤنڈز ہیں انہیں ہم لینگویج نہیں بولتے۔ اینڈ نان انسٹنکٹیو، اور یہ نان انسٹنکٹیو ہے، غیر یہ جبلی نہیں ہے، ہم لینگویج سیکھ کر پیدا نہیں ہوتے، ہمارے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے، وہ بولنے کی ہوتی ہے، لیکن بولنا کیا ہے یہ نان انسٹنکٹیو ہے، یہ ہم آ کے سیکھتے ہیں۔ ہم جس سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں ہم وہاں سے وہ والی لینگویج سیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے کوئی لینگویج سیکھ کر پیدا نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل ہم اردو سوسائٹی میں پیدا ہوئے، ہم نے اردو بولنا شروع کر دیا، وہی اگر اردو سوسائٹی میں پیدا ہوئے بچے کو انگلش سوسائٹی میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اردو کی بجائے انگریزی بولنا شروع ہو جائے گا۔ تو جو لینگویج ہے یہ نان انسٹنکٹیو ہے، بولنے کی جو ہمارے پاس طاقت ہے وہ انسٹنکٹیو ہے، وہ ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ ہوتی ہے، اور زبان کوئی بھی ہم پیدائشی طور پر سیکھ کر پیدا نہیں ہوتے، یہ ہم آ کے سیکھیں۔ اور consisting of a conventional system of sounds, symbols that are produced voluntarily، سیپر یہ کہتے ہیں جو اہم ہے اس ڈیفینیشن کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک تو پیورلی ہیومن اور یہ نان انسٹنکٹیو ہوتی ہے۔ تو جی یہ دو ڈیفینیشن تین ہوگی ہمارے پاس، ایک سیپر کی، دوسری ہم نے نوم چومسکی کو دیکھا، اور نمبر 3 پہ ہم نے وہ پڑھا تھا آکسفورڈ ڈکشنری کا۔ تو یہ تو تھی ڈیفینیشن کہ لینگویج ہوتی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ اپنے طور پہ بھی دیکھا کہ پیٹرن وے آف کمیونیکیشن، a mode of communication of human species
अब बहुत सारी डेफिनेशंस आ सकती हैं, और भी बड़े सारे जो लिंग्विस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस की हैं लैंग्वेज की। तो इन लैंग्वेज के नतीजे में हमारे सामने जो बात आती है वो ये है कि अ नॉन इंस्टिंक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, अ नॉन इंस्टिंक्टिव वे, अभी हमने बात की कि ये है नॉन इंस्टिंक्टिव, अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बट नॉन इंस्टिंक्टिव है। हम इसे जिबिल्ली तौर पर कोई भी ज़ुबान नहीं बोलते, हम आके इसे सीखते हैं, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और ये इसका मकसद क्या है, ये है कि इसलिए अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारे राब्ते का ज़रिया है। लैंग्वेज जो है, अगर इस डायग्राम को आप देखें तो बेसिकली ये सिंबल होते हैं, साउंड सिंबल भी हो सकते हैं और ये रिटन सिंबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इंग्लिश लैंग्वेज का साउंड है ए, ये साउंड सिंबल है ए, और अगर हम इसे रिटन में ले आएँ तो वो हमारे पास रिटन सिंबल आ जाएगा। तो लैंग्वेज जो है ये नॉन इंस्टिंक्टिव है, अ वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये सिंबल्स पे मुश्तमिल होती है, और वो सिंबल्स रिटन भी हो सकते हैं और वो साउंड सिंबल भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास लैंग्वेजेस के नतीजे जो हमारी डेफिनेशन पढ़ी हैं उसके बाद हमारे सामने ये बात आ जाती है। अब आगे हम शुरू करते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ये है क्या, लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नंबर 1 पे लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, ज़ुबान जो है ये आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि ये आपके स्वाबदीद पे मुनहसर होती है। कैसे? अब लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी इन द सेंस दैट, लैंग्वेज जो है ये इस तरीके से इस वजह से आर्बिट्रेरी होती है कि देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड मीनिंग, कि किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड होते हैं और उनके मीनिंग होते हैं उनके दरमियान में कोई भी अकली रिश्ता नहीं होता, कोई भी रिलेशन नहीं बनता। फॉर एग्जांपल चेयर क्या होती है? चेयर होती है जी 4 पायों वाली एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर एक सीट रखी होती है और उसे हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो चेयर होती है। उर्दू में हम उसे कुर्सी कहते हैं। हम क्यों कहते हैं? हम उस 4 टांगों वाली चीज़ को जिसे हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कुर्सी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका हमारे पास कोई अकली दलील नहीं है, कोई वजह नहीं है। हम उसे उर्दू ज़ुबान में कुर्सी क्यों कहते हैं, इंग्लिश में चेयर क्यों कहते हैं? तो इस क्यों का हमारे पास कोई जवाब नहीं, ये स्वाबदीद है, आप कैसे भी उसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज जो है ये आर्बिट्रेरी है, ये स्वाबदीद है, आपकी स्वाबदीद पे है कि आपने उसे कैसे बोलना है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ज़ुबान जो है ये स्वाबदीदी होती है। नंबर 2, लैंग्वेज इज़ सोशल, ये सोसाइटी से हम सीखते हैं और सोसाइटी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स, रवायती जो कम्युनिकेटिव सिग्नल्स होते हैं यूज्ड बाय ह्यूमन, जो इंसान इस्तेमाल करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, राब्ते के लिए, इन अ कम्युनिटी, एक मुआशरे में। हम सबसे पहले पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि नॉन इंस्टिंक्टिव है, तो हम पैदाइशी तौर पे तो ये सीख के नहीं आते। तो फिर लैंग्वेज जो है इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, और जो लर्निंग प्लेस है, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है इसका, वो है सोसाइटी। हम सोसाइटी से सीखते हैं जहाँ हम रहते हैं, और उस सोसाइटी से हम अपने जैसे इंसानों से राब्ता करने के लिए हम जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं उसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैंग्वेज इस तरह से सोशल हुई। इसका जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है ये सोशल है। सोसाइटी के बिना अगर आप एक पैदा होते बच्चे को जंगल में छोड़ाएंगे, वहाँ उसको कोई सोसाइटी उसके पास नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तो वो कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकेगा, वो कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा। तो इस तरह से लैंग्वेज जो है ये सोशल है, सोसाइटी से हम सीखते हैं और सोसाइटी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो जी ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था। पहला था ये स्वाबदीदी होती है, दूसरा ये सोशल होती है। नंबर 3 पे सिंबॉलिक है, इसमें हम सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने एक स्लाइड में पीछे बात की थी कि लैंग्वेज जो है ये सिंबल्स होते हैं, और ये कौन से सिंबल होते हैं? ये रिटन भी हो सकते हैं और ये साउंड सिंबल भी हो सकते हैं।
Language consists of various sound symbols and their graphological counterparts. Graphological इसके ग्राफ्स जैसे हम बनाते हैं जो written symbols हैं, तो जैसे मैंने आसान लफ्ज़ में आपको ये बयान कर दिया कि ज़ुबान जो है ये सिम्बल्स पे मुश्तमिल है. जैसे मैंने कहा था कि ए अगर इस साउंड को देखें तो ये साउंड सिंबल है, और अगर इसे हम इसे ग्राफ में ले आए, इसे रिटर्न में ले आए, तो हमारे पास रिटर्न सिंबल हो जाता है. तो पहला करेक्टरिस्टिक था आर्बिट्रेरी, दूसरा करेक्टरिस्टिक था इसका सोशल, तीसरा सिंबॉलिक, और चौथे पे ये सिस्टमेटिक है. लैंग्वेज जो है ये किसी एक सिस्टम के तहत चलती है. लैंग्वेज आल्दो इज़ अ सिंबॉलिक, ज़ुबान अगरचे ये सिंबॉलिक है, इन सिंबल्स के अकॉर्डिंगली चलती है, लेकिन इट्स सिंबल्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, और उन सिस्टम्स को, उन सिंबल्स को, उन अलामतों को हम एक ख़ास पैटर्न में एक ख़ास तरीके से लिखते हैं, बोलते हैं, तो हमारी लैंग्वेज बनती है, हमें समझ आना शुरू होती है. जैसे मैंने शुरू में एक लैंग्वेज आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि लैंग्वेज इज़ अ पैटर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन. उस पैटर्न, अगर वो पैटर्न से हट जाएगी तो हमें उस ज़ुबान की समझ नहीं आएगी. तो ये ज़रूरी है कि लैंग्वेज को बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए और अपनी बात को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. इसलिए हम कहते हैं कि लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक. और ऑल लैंग्वेजेस हैव देयर सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स, और हर लैंग्वेज का एक अपना सिस्टम है अरेंजमेंट का. एवरी लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, और हर लैंग्वेज जो है ये मुख्तलिफ सिस्टम्स का एक सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है लैंग्वेज जिसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स चल रहे होते हैं. वो सिस्टम कौन से हैं? वो फोनोलॉजी के, वो मॉर्फोलॉजी हो सकती है, वो इसकी ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, साउंड्स का स्ट्रक्चर है, प्रोनाउंसिएशन है, ये मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि वर्ड्स का एक अपना सिस्टम है, साउंड्स का एक अपना सिस्टम है, और ये सारे के सारे सिस्टम एक सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं. तो इसलिए हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ये है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स. नेक्स्ट जी, लैंग्वेज जो है ये वोकल है. वोकल क्या है? ये बोले जाने से ताल्लुक़ रखती है. लैंग्वेज जो है, हमने लैंग्वेज को बोलना पहले सीखा था, लिखना बाद में सीखा था. तो जो लैंग्वेज के दो अहम करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से एक हर वक्त ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए, या तो वो वोकल होनी चाहिए, या तो उसका ताल्लुक बोले जाने से हो या लिखे जाने से हो. तो वोकल जब हम कहते हैं तो लैंग्वेज इज़ प्राइमरली मेड ऑफ वोकल साउंड्स ओनली प्रोड्यूस्ड बाय फिजियोलॉजिकल आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इट अपीयर्ड एज अ वोकल साउंड. इसे हमने वोकल साउंड पे, इसे हमने आवाज़ों के तहत बोलना सीखा था, यानी कि हमने बोलना सीखा था. राइटिंग केम अप मच लेटर. तो राइटिंग जो है ये, इसे हमने, यानी कि ज़ुबान को लिखना हमने बहुत बाद में सीखा. तो ये एक अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लैंग्वेज जो है ये इसका ताल्लुक बोलने से भी है, और लिखना हमने बाद में सीखा. नेक्स्ट जी, हमारे पास ये जो एक दो और कैरेक्टरिस्टिक है. लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव. अब लैंग्वेज के अंदर प्रोडक्टिविटी भी होती है और क्रिएटिविटी भी होती है. क्रिएटिविटी कैसे है कि आप लैंग्वेज को फ़र्ज़ करो आप कोई ऐसा लफ्ज़ बोलते हैं जो आपसे पहले कभी किसी ने नहीं बोला होता, सोसाइटी में किसी को उसका मतलब नहीं पता होता, और आपने वो बोला, और आपसे वो लफ्ज़ बोलना दूसरे लोगों ने सुना, वो भी बोलना शुरू हो गए. तो ये क्रिएटिविटी है, आपने एक क्रिएटिव काम किया है, अपनी ज़ुबान को एक लफ्ज़ दिया है. और प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी ये है कि हम लैंग्वेज के साथ फ़र्ज़ करो हमारे पास साउंड्स जो हैं, इसके अल्फ़ाबेट्स हैं, हम इसको बहुत सारे अल्फाज के नए अल्फाज इन्वेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे सिस्टम के तहत बहुत सारे नए सिस्टम लैंग्वेजेस में बनते रहते हैं. तो इसलिए ये प्रोडक्टिविटी भी है, यानी कि जो हम पहले उर्दू ज़ुबान जब सामने आई थी, तो उसके बाद आज तक उर्दू ज़ुबान के लिखने में, इसके स्क्रिप्ट में, इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसके तलफ़ुज़ में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई. तो यही लैंग्वेज की प्रोडक्टिविटी होती है. और नॉन इंस्टिंक्टिव जो है, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि नॉन इंस्टिंक्टिव जो है ये है कि हम ज़ुबान आके इस दुनिया में सीखते हैं अपनी सोसाइटी से, हम लैंग्वेज को सीख कर नहीं आते. तो जी यही हमारा आज का
ٹاپک تھا کہ واٹ از لینگویج اور لینگویج کی نیچر کیا ہے, لینگویج کے کریکٹرسٹکس کیا ہے. تو ہم نے یہ ڈیفینیشنز دیکھی اور ہمیں ان سب کے بعد جو سمجھ آئی کہ زبان کیا ہے, لینگویج نان انسٹنکٹیو وے آف کمیونیکیشن, اور یہ سمبلز پہ مشتمل ہوتی ہے. ساؤنڈ سمبلز بھی ہو سکتے ہیں اور ریٹن سمبلز بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کچھ کریکٹرسٹکس دیکھے لینگویج کے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو یو آر ویری ویلکم ٹو آسک. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.